Hello students, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss absorption spectroscopy concept from analytical chemistry chapter. So as you can see over here, the word absorption spectroscopy, if I am going to be divided, if I am going to be ignore the absorption word, so we only focus on to the spectroscopy word first of all. Okay, so first we should understand what is the exact meaning of over here the spectroscopy. So spectroscopy is nothing but it is actually study of interaction between the light and matter. So whenever we are going to be dealing with the what study of interaction of light with respect to matter, those particular part is actually known as what your spectroscopy. Now the second term will be the absorption. Now absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी द टोटल वर्ड इज देयर मीनिंग. सो यहाँ पे हम लोग ये स्टडी करेंगे दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू बी कंसिडर द एनी एटम्स और द मॉलिक्यूल. Okay, so when they are going to be absorb particular light from the what radiation of the source, okay, then what will happen? So basically when we are going to be dealing with the absorption spectroscopy, the first thing we have to understand, that is a major key point for this theoretical part, will be the interaction of light with matter and that resulting new kind of light. मतलब यहाँ पर ये है कि whenever your matter is going to be interact with light, there has to be something new kind of material we will get, means new kind of light will be transmitted, or we can say reflected. So as you can see in the following diagram, these are the actually light radiation of the source. When it is going to be interact with your sample which is present into the sample solution, then what will happen? So these are the so many possibilities of what your interaction of what your light and the matter. So जब ये आपस में दोनों interaction करते हैं, so these are the possibility that what things are going to be happen. So first either reflection यहाँ पे हो सकता है, second refraction हो सकता है, third elastic scattering हो सकती है, fourth inelastic scattering हो सकता है, and the last one will be transmission and the absorption. So these are the so many possibilities when your light interact with the sample present in the sample solution. But in this session we are going to be briefly talk on what your absorption part means. This sample which is present into the sample solution has to be absorb this light. Then what will happen? So definitely there will be the some of the procedure will be carried out over here. So just take a look. Now here when we are going to be dealing with the absorption part out of all this process, so absorption of light means exactly what happened. To understand that particular terminology, first we should understand over here the two major laws. The one law will be your Lambert law and second will be the Beer law, and these combined laws is known as what your Beer-Lambert's law, and this is very famous law. I hope so you should already learn into the UV visible spectroscopy. Okay, we are going to talking about that particular part but later on. So first we should understand over here what is the meaning of Lambert law. Now Lambert law is nothing but what? The absorption of a material sample means what? Absorbance of a material sample is directly proportional to थिकनेस. तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, क्या? थिकनेस. मतलब व्हेनेवर ओके लाइट एंड सैंपल सॉल्यूशन का इंटरेक्शन होता है तो एब्जॉर्बन जो होता है मटेरियल सैंपल का, इट इज एक्चुअली डायरेक्टली कोरिलेट विद दी व्हाट योर थिकनेस. सो दिस लॉज प्रपोज्ड बाय द लैम्बर्ट. द सेकंड बियर लॉ विल बी द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मीडियम. ओके, listen carefully, the amount of radiation absorbed by the medium is proportional to the, अब यहाँ पे ये वर्ड जरूरी है, what? Number of absorbing molecule in the medium. So that nothing but what your concentration of the molecule. So what law state about the Beer's law? So the amount of radiation, okay, which is absorbed by the your sample which is present into the sample solution is directly proportional to what your concentration of the solution. So these are the basically two major laws we have to understand first of all to understand the absorption of light. Okay, so now second will, when we are going to be combine both this law, we are talking about the Beer-Lambert law. So what is the Beer-Lambert law? So as you can see over here, the A, this capital letter denotes the absorbance. Okay, so whatever they are going to be absorb the light, so nothing but the absorbance. उसे हम लोग यहाँ पे optical density भी बोलते हैं sometime. So it is a OD, is nothing but the optical density. So now these actually is equal to what your epsilon
C for concentration and L for length. So these are the actually mathematical expression which is very important while you are talking about the absorption of light. So what is the absorbance means what is the optical density? So optical density is nothing but the epsilon का यहाँ पे मतलब होता है extinction coefficient is nothing but the molar absorptivity. Then second C will be the your concentration of your solution and L indicates the length of the medium. Now this equation is nothing but the what you are log to the base 10 means natural logarithm I naught divided by I, which is the actually another function of your what wavelength is lambda. And now this is also again molar extension coefficient मतलब यहाँ पर क्या है आपका molar absorptivity. So it is again function of the what your molar absorptivity means lambda and concentration CL. So these are the actually what your Beer-Lambert's law. Now how these equations are going to be coming from, तो उसके लिए हम लोग brief में बात करेंगे. So now just take a look over here. So in this diagram as you can see these are the actually what incident light means incoming light, so we can denote it as I naught. When it is going to be falls onto the your sample solution means sample which is present into the sample solution, we can consider over here these are the actually dx. Dx is nothing but the thin slab of your sample solution we are going to be consider. So in this sample solution n actually denotes the what number of molecules means n is nothing but what light absorbing molecules. मतलब इस sample solution में हमारे जो molecules है which absorb the light, those molecules is denoted by what your small letter n. Okay, so when this is going to be interact, okay, then some of the light are going to be absorbed and those molecules are not going to be absorb the light, they are going to be what your transmitted. तो हम लोग यहाँ पे we are only going to be focus on what your absorption part, that what molecule are going to be absorb the light. तो यहाँ पे ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है that light जो इंटेंसिटी है, ठीक है, विच इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, बिकॉज हम वही स्टडी कर रहे हैं. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स व्हाट यू आर दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इनटू द सैंपल सॉल्यूशन, हाउ दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट. सो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन से ये पता चलेगा दैट लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब बाय द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू आर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. मतलब यहाँ पर जो हमारी इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की उसके ऊपर वो डिपेंड करती है. सेकेंड क्या है यहाँ पर दैट इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है विच आर एबल टू एब्जॉर्ब दिस लाइट रेडिएशन. एंड थर्ड but not the least will be the your absorption cross section. Again it is going to be most important point student according to a mathematical expression that what is the absorption cross section of the molecule. So these are the actually three fundamental background which is responsible for the light intensity absorbed by the sample. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये इक्वेशन से समझ में आएगा. Now we are going to be solve this particular terminology. Now over here as we can see the derivative part, this is what I am saying, dx is nothing but the what your this is a thin slab of the sample solution means with respect to intensity means light intensity absorbed by the sample which is nothing but what intensity of the incident light. So we can write it down is then is directly proportional to what your intensity. Absorption cross section is nothing but the sigma and the n means number of absorbing molecules. So these are the total equation. I am just going to be write it down in a mathematical form. Now this equation will be carried out what condition when your x is equal to 0 and your incident light I when it is equal to I0, when these are going to be equate together. So we will get this equation at this condition. Now if I am going to be applying the what your integration part, so I am going to be solve the integration and after solving the integration you will get this equation. Now we have this one equation and another one will be the what your Beer-Lambert's law. Now when we are going to be combine this both the equation together, then what we will get here that absorption cross section means sigma is nothing but what your 2.303 epsilon length concentration divided by what number of molecules into length. So we are going to be equate these both the equation and we will get this equation. Now here length will be the cancel, then remaining equation I am going to be writing over here. Now after solving this equation I am going to get the absorption cross section value will be 3.82 into 10 raised to minus 21 epsilon. Now here you can see properly the 1000 will be I am going to be introduced over here from this equation. So you might be means confused कि ये 1000 यहाँ पे कहाँ से आ. So as you can see the n means what number of molecules is nothing but what your concentration divided by 1000 into Avogadro's number has to be multiplied. So why I am going to be taking this value, because the unit of concentration will be present into the moles per liter whereas the number of molecule present into the centimeter cube.
So now this unit has to be again what considered as a in centimeter cube. So to equate these all the units, we will get here 1000 over here. I hope so now you should clear. So this is how by solving this we will get. मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यहाँ पर number of molecule जो है which are able to absorb the radiation, they are having what, how many absorption of cross section area, that will be the 3.82 into 10 raised to minus 21. Now what is the major role, why we have to study this absorption cross section? The reason is that, for example, मान लीजिए I am going to take here alcohol example. This is the methanol. Now I am going to be draw this structure. Now when I am going to be exposure this molecule, okay, in the presence of light, then what will happen in the absorption spectroscopy, this molecule will absorb the light. But अब ये सारे इतने molecule में हर कोई जो element है, they are not going to be able to absorb the light. तो यहाँ पर क्या होता है, these are the functional group OH actually responsible to absorb the light. Okay, OH will be absorb the light. So these are the actually what responsible to absorption. Okay, तो ये जो part जो है OH, because of that what absorption will be taking place. तो इस part को यहाँ पर actually हम लोग क्या बोलते हैं, absorption cross section. And when we are going to be consider the whole total molecule, तो उसे यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट बोलेंगे molecular cross section. So these are the two terminology most important while you are talking about the absorption spectroscopy. So you should understand कि पूरा molecule absorb नहीं करता है, there will be the sum of the elements and functional group which are responsible to absorb the light. So in the methanol OH group will be absorbed. तो ये हुआ यहाँ पे this particular group will be your absorption cross section, whereas when we consider the total whole molecule, so we can consider as a terminology molecular cross section. Now they are having particular value here. If I can say absorption cross section value will be 10 raised to minus 18 centimeter square, means area over here molecular जब हम लोग consider करते हैं, so उसकी value यहाँ पर होती है 10 raised to minus 15 centimeter square. Now these are again calculated value, तो हम लोग उतना deeply नहीं study करेंगे, that is again mechanical part. So I am not going to be covered, but you should have to figure out this all the value and remember. Now after understanding this, the next part will be, okay, we have to see that when this light, okay, interact with your sample which is present into the sample solution, then exactly what will happen. So to understand this terminology, we have to understand over here that energy of the molecules. Okay, means what kind of the energy level are going to be observed. So these are actually totally depends upon the what kind of radiation or what kind of energy you are provided to the sample. Okay, so as you can see here, I am just going to show you the three mathematical equation. तो first ER का मतलब यहाँ पर होता है स्टूडेंट रोटेशनल एनर्जी, मीन्स दिस एनर्जी व्हेन आई एम गोइंग टू बी सप्लाइड टू द सैंपल. ओके, तो ये इक्वेशन ही आपको पता होगा दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू मतलब यहाँ पे क्या होती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द C अपॉन लैम्डा, और C1 अपॉन लैम्डा मतलब आपका होता है वेव बार. तो ये एक्चुअली बेसिक इक्वेशन, आई होप सो यू शुड अवेयर अबाउट इट. सो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग दिस. तो अगर मान लीजिए मतलब यहाँ पर मैंने वेवलेंथ जो होती है, ठीक है, आई एम जस्ट सपोज टू पास ओनली 10 to 30 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट चेंजेस कुड टेक प्लेस. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में इतना ही चेंजेस होगा दैट योर मॉलिक्यूल स्टार्ट टू रोटेट. तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी स्टार्टेड टू रोटेट. तो उनका ऐसे 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 सिर्फ रोटेशन स्टार्ट होगा व्हेन आई एम गोइंग टू बी सप्लाइंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी. नाउ आई एम गोइंग टू बी इंक्रीज द एनर्जी, मतलब मैंने इंक्रीज किया एनर्जी 1 to 10 माइक्रोमीटर. देन व्हाट विल हैपन, सो एज सुन एज आई एम गेटिंग द दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, सो माई मॉलिक्यूल गेट स्टार्ट टू वाइब्रेट. तो यहाँ पर क्या होगा, एज यू कैन सी द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब होता है स्प्रिंग. तो वो क्या होता है, वाइब्रेशन विल बी स्टार्टेड टू दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट टू शेकन. तो यहाँ पे होता है वाइब्रेशनल एनर्जी. बट इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन वी आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन टू द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. तो अब यहाँ से आपका एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है. सो आई एम गोइंग टू बी डिनोटेड एज ई. ओके, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, सो दीज आर द एक्चुअली एनर्जी मीन्स 150 to 800 नैनोमीटर. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर गोइंग टू बी सप्लाइड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर एबल टू नाउ व्हाट जंप फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड टू द मॉलिक्यूल. सो दीज आर द एक्चुअली condition when your molecule react what. Okay, so these are the actually energy slab. Now after understanding this, we are going to be interested more in what your electronic energy. So after getting the 150 to 800 nanometer kind of energy, what changes could taking place under the molecule. So as you can see over here in the below diagram,
these are the actually electronic level, these are the vibrational state, and these are the rotational state. Suppose these are the actually molecule which is present onto the what your ground state. Okay, present onto the ground state, these are your excited state. Now the every electronic state has particular sum of the vibrational state, and each and every vibrational state sum of the carried out the rotational state. तो ये हुआ मेरा rotational state, मतलब ये जो सिंगल यहाँ पर जो है वाइब्रेशनल, उसमें इतने मेरे रोटेशनल स्टेट है, और ये जो मेरे वाइब्रेशनल है ये स्टेट सारे प्रेजेंट किस में है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में. सो वी आर गोइंग टू बी कंबाइनली नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक लेवल. सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक लेवल means we already dealing with the rotational energy and the vibrational energy, and then combinedly we are going to be focused now over here into the electronic level. And whenever we are going to be talking about the electronic level means we are going to be talking about in the spectroscopy UV visible spectroscopy part. तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट जो है बेसिकली इज डीलिंग विद द व्हाट यूर इलेक्ट्रॉन लेवल. तो इसे हम लोग पर्टिकुलरली समटाइम वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज ए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो. ओके, now over here as you can see these are the my incident light, okay, intensity of the light which is passed through the what your sample solution, and these are the transmitted. Then what will happen, अब यहाँ पर जो है most important law होता है that you should remember. So as you can see these are the ground state. अब ground state में यहाँ पे क्या है, vibrational state है, vibrational state में rotational state present है. So these are my molecule. Now this molecule what they are going to be what absorb the energy. How much? 150 to 800. Now when they are going to be absorb this particular energy, they are able to now what transit. They are going to be jumping from ground state to the excited state. Now they are going to be, as you can see here I am going to be showing the arrow. अभी यहाँ पे जंप किया यहाँ पर. ना यहाँ पे डिपेंड होता है कि यहाँ पे देखो मैंने as you can see I am just going to show the two excited state. This is my first and the second. ओके अब मान लो सपोज अगर मैंने ग्राउंड सेट है एक्साइटेड सेट पे मुझे सपोज 400 इतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ठीक है. तो ये जो यहाँ पे गैप जो होता है दिस इज इनिशियल एंड द फाइनल. सो वॉट एवर दे आर हैविंग द वैल्यू 400 मीन्स द 400 यूनिट में ही उसको इतनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू जम्प द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द एक्साइटेड लेवल. If I am going to be provided 300 or 500, so the your electron will be present in between the system. तो वहाँ पे आपका एक्साइटेशन या फिर सिस्टम फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को. तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है दैट वॉट एवर एनर्जी वी आर गोइंग टू बी सप्लाइड ओके to your molecule that has to be what completely fulfill their criteria. मीन्स यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे 400 यूनिट की एनर्जी की ज़रूरत है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, तो उतनी ही एनर्जी वहाँ पर रिक्वायर्ड है. तो जाके यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे मैंने 500 टर्म्स में 500 यूनिट में उसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो आगे जाके यहाँ पर इन बिटवीन आएगा. सो दैट पार्ट आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. ठीक है, सो दिस टू थिंग्स यू शुड रिमेंबर. तो यहाँ पे ये हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब मान लीजिए मैंने उसको और ज़्यादा एनर्जी सप्लाइड की, तो होप्स हो कि वो नेक्स्ट लेवल जो होता है एक्साइटेड स्टेट 2 जो है वो वहाँ पर जाके हिट करे. सो दीज आर द नाउ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अब ये यहाँ पर हमें कहाँ से पता चलता है. सो एज यू कैन सी, सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी प्लॉटिंग दीज वॉट योर एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उस स्पेक्ट्रा को यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. व्हाट वी कैन सी हियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट द absorbance is nothing but optical density versus your wavelength. When we are going to be plotting this, so you will get very nice your bronze स्पेक्ट्रा. तो यहाँ पे आपको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिला. अब ये यहाँ पे क्यों मिलता है, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है. एज यू कैन सी एज अर्लियर आई सेड दैट इलेक्ट्रॉनिक लेवल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी वाइब्रेशनल स्टेट है, रोटेशनल स्टेट है. सो दिस पार्ट ऑल्सो गोइंग टू बी प्रेजेंट इन टू द योर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल गेट ओवर हियर दिस काइंड ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रा इनटू द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द माई लैम्डा 1 and lambda 2. So what it indicates, so this equation indicates, so when I am going to be passing the light to the molecule, so these are going to be excite when excited state 1, so they are carried out this equation. मतलब एनर्जी मतलब क्या है, 1 photon is nothing but the h nu 1. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c upon wavelength. So this is the speed of the light again and h nu 2. So depending upon that when they are going to be excite more, तो ये यहाँ पे आएगा, और जैसे एक्साइटेड 2 पे चला जाएगा वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज होती है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी प्लॉटिंग. अब ये जो कंडीशन है यहाँ पर इंटरेक्शन जो हो रहा है एक्चुअल में, दैट एक्चुअली टर्मिनोलॉजी डिपेंड अपॉन दी वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ योर फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल. तो फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल यहाँ पे समझ लो बहुत ज़रूरी है. क्या है, तो फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल यहाँ पे हमें ये सजेस्ट करता है दैट
व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव मच फास्टर देन द न्यूक्लिया। अब ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखो, न्यूक्लिया, व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन योर इलेक्ट्रॉन ओके मूव मच फास्टर देन योर न्यूक्लिया, देन द न्यूक्लिया रिमेन्स इफेक्टिवली स्टेशनरी। मतलब न्यूक्लिया में यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, न्यूक्लिया एज सच अपने प्लेस पे प्रेजेंट रहेगा ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है न्यूक्लिया डजंट अफेक्ट, ओके तो इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली मूव फास्ट कर जाता है। तो उसके लिए हमें फ्रैंक कंडोम प्रिंसिपल में ये दो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। अब ये दो डायग्राम मतलब क्या है देख लीजिए। अभी यहाँ पे मैंने प्लॉट ड्रॉ किया, ये है मेन एनर्जी। तो एक्चुअली हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, वेव्स भी है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है कुछ ऐसे वेव्स होते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट लाइन हुआ, सेकंड हुआ, जैसे 0 1 बोले। अब अगर मान लीजिए मेरा सेकंड जो पार्ट है वो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी लाइन से, तो ये जो यहाँ पे जो मेरा न्यूक्लिया है जो इलेक्ट्रॉन का, दैट इज डजंट अफेक्ट, तो इसमें कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सीधा ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। ये सीधा स्ट्रेट जाके इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव, जंप, फास्ट जंप करेगा इन अ स्ट्रेट वे। तो वो ऐसे अगर क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में नहीं जाता तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट। तो ये यहाँ पे जब स्ट्रेट जाकर ये वेव के कौन से प्लेस पे यहाँ पे हिट कर रहा है, सो दैट पार्ट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये ट्रांजिशन यहाँ पे मतलब क्या है, पॉसिबल है। इफ आई जस्ट सपोज टू नाउ सी, ये तो थोड़ा साइड में वेव था, अब मैंने एग्जैक्टली इस वेव के ऊपर ही वेव बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो अब देख लो ये जो मेरा ग्राउंड स्टेट है, तो ये यहाँ पे स्टेट पॉसिबल है एक्साइटेशन। तो अब पॉसिबल स्टेट क्या है, मतलब वो फर्स्ट एक्साइटेशन को भी हिट कर सकता है, सेकेंड लेवल को भी हिट कर सकता है एंड थर्ड लेवल को भी हिट कर सकता है। तो यहाँ पे लेवल कितने हैं, 0 1 2। सो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इलेक्ट्रॉन जंप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कौन से लेवल पे हो रहा है, 0 1 या 2, डिपेंडिंग अपॉन दैट देन फाइनली थ्रू द डिटेक्टर वी विल गेट योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, आई एम जस्ट सपोज टू शो ओवर हियर व्हेन दीज आर गोइंग टू बी 1 to 1 इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखो 0 0, अब 0 0 का मतलब है स्ट्रेट इंटरेक्शन हो रहा है वेव्स के साथ, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। अब 0 1 देखो वेरी लोवेस्ट मैंने दिखाया है, तो 0 1 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे 0 और 0 2 मतलब सबसे बाद में, तो सबसे लोवेस्ट यहाँ पर आएगा 0 2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी रीडिंग द योर स्पेक्ट्रा बाय यूजिंग द फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल। सो ये प्रिंसिपल समझना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है, दैट वेयर योर इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी हिटेड into the place of your excited state. So that terminology we could understand by the Frank Condon principle. I hope so you should understand now what is the exactly Frank Condon principle. Now अब यहाँ पे मैंने बोला then to getting the absorption spectra, to getting this particular value, we are here required the spectrophotometer. So spectrophotometer, it is actually one kind of instrument who help to understand the absorption value. To getting the absorption value we require some of the instrumentation. We can called it as what your spectrophotometer. So basically what is the arrangement of this instrument? So as you can see, this is the basic diagram. Light will be crossed through the your sample solution, then light will be coming out. So these are the your equation. Now as you can see, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लगेगा light source in the instrument. Light source हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए, which is able to generate choice of wavelength. So as earlier I said that if I have to jump the electron from ground state to excited state, if I require the 400 unit of energy, so this kind of the wavelength, this kind of energy we require. तो ये हमें लाइट सोर्स यहाँ पे ऐसे टर्म्स में सिलेक्ट करना है जिसमें दे आर एबल टू जनरेट द चॉइस ऑफ द वेवलेंथ. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया इन द इंस्ट्रूमेंट पार्ट. लाइट सोर्स वी रिक्वायर. तो जनरली यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द means your tungsten lamp we are going to be used, okay, as a source. Then second, now here further after selection of the source, second part will be the monochromator. Now monochromator over here, the most important part in the instrument, they are actually your wavelength selector. ठीक है, मतलब आफ्टर पासिंग दिस लाइट, ओके, नाउ दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टिंग द वेवलेंथ टू जम्प द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट योर ग्राउंड टू एक्साइटेड. तो मोनोक्रोमेटर का यहाँ पे रोल होता है टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ. आफ्टर दैट आता है आपका सैंपल सेल चेम्बर, जिसमें आपका सैंपल प्रेजेंट है सैंपल सॉल्यूशन में. सैंपल सेल, अब ये लाइट यहाँ से मोनोक्रोमेटर से सिलेक्ट होके सैंपल में पास हुआ ना, यहाँ पर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स है दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड देन रिमेनिंग जो लाइट है दे आर गोइंग टू बी पासिंग आउट टू द डिटेक्टर.
अब यहाँ पे डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर आर गोइंग टू बी रिकॉर्ड द डेटा, रिकॉर्ड द योर अब्जॉर्बेंस ऑफ योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट टू द सैंपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डिटेक्टर हम लोग यूज करते हैं जनरली पीएमटी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ओके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। सो वाया यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वी आर एबल टू डिटेक्ट दिस what absorption of your solution, and then we are getting a very nice spectra look like this. Okay, now after understanding all this terminology, now we are going to be mainly start with our major part, that what is the UV visible spectroscopy. Now up to this, whatever I am going to be talking about regarding the absorption spectroscopy, the same basic theory we are going to be applying for all the absorption part. मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपका absorption spectroscopy होगा वहाँ वहाँ पर ये सारी टर्मिनोलॉजी होगी। मतलब मान लीजिए अगर I have to study the fluorescence spectroscopy, so under the fluorescence spectroscopy also we are going to be follow the same basic theory. If I have to study the chemiluminescence, if I have to study the photoluminescence, फॉस्फोरेंस, तो एब्जॉर्प्शन से ही वो टेक्निक हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बेसिक थ्योरी हम लोग यही अप्लाई करेंगे। सो दैट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट रेंज। अब यूवी विजिबल इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ व्हाट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आई होप सो यू शुड नो दैट मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट लाइक योर पीएस स्केल, आपको पता है 1 to 14 होता है। इन द सेम वे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट इज अ वन टाइप ऑफ द स्केल। एक हमारा सीरीज होता है जिसमें वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द कॉस्मिक रे। कॉस्मिक आएगा गामा, एक्स रे, देन योर यू विजिबल, IR, माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। दीज आर द सीरीज। वेयर एज इन बिटवीन आता है आपका यू विजिबल, जिसका यहाँ पे रेंज होता है 200 to 400 नैनोमीटर फॉर द यूवी। अब नाउ इन सम ऑफ द बुक, रेफरेंस बुक मतलब पाविया हो, कालसी हो, जिसमें दिया है रेंज लेस देन द 200 नैनोमीटर, मीन्स इट शुड बी द 190 नैनोमीटर। ओके, सम ऑफ द, तो अब यहाँ पे ये बात समझ लो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बेसिकली जो डील करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी टर्म्स, तो वो रेंज होता है यहाँ पे 200 to 400 नैनोमीटर इन एक्चुअल। बट व्हेन वी आर गोइंग टू बी कंसिडर द लेस देन 200 नैनोमीटर मीन्स 190, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वैक्यूम यूवी। नाउ द वर्ड वैक्यूम यूवी व्हाई आई एम गोइंग टू बी यूज। सो जब हम लोग यहाँ पे 200 to 400 कंसिडर करेंगे, वी कैन से इट्स अ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट जैसे ही मैंने बोला कि लेस देन 200, आई एम गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड वैक्यूम। अब वैक्यूम यहाँ पर क्या होता है, दैट एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज ओके प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो उसमें क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें डेफिनेटली एयर आया मतलब ऑक्सीजन हुआ। नाउ दैट oxygen will be interfere with that instrument, interfere with your sample solution, and then that also affect the your what final absorption spectra। तो जिसमें हमें ऑक्सीजन के लिए भी हमें एक फाइन बॉड स्पेक्ट्रा वहाँ पे अपीयर होता है। ठीक है, टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर पार्ट हमें इस काइंड का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है जिसमें वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ना कर सके। तो जिसके लिए यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट में फिर वैक्यूम की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरी होता है जब हम लोग लेस देन 200 नैनोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वैक्यूम यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द 200-400 नैनोमीटर, देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन विथ योर रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो क्योंकि ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं फर्दर 400 to 800 नैनोमीटर। तो ये जो एनर्जी रेंज होता है इट इज टॉकिंग अबाउट द विजिबल पार्ट। सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी कंबाइन द टोटल एनर्जी दैट 200 to 800 नैनोमीटर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन कंबाइनली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम लोग अल्सो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, योर इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी जंपिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और वही हम लोग उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर लाइक योर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ पर भी हम लोग एब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं बट देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस। मैंने ऑलरेडी आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पार्ट में वो पढ़ाया है कि वो क्या मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे यही फोकस करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जहाँ पर वर्ड आया तो वहाँ पे हमारे दो मेन टर्मिनोलॉजी आती है। एक होता है आपका होमो एंड अनदर टर्म विल बी द ल्यूमो। अब होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी जंपिंग टू द व्हाट योर हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब ये आपने डायग्राम ऑलरेडी देखा होगा, एमओटी चैप्टर मैंने पढ़ाया था।
यहाँ पर देखो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, व्हेन दे कंबाइन फॉर्म द बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दे आर गेटिंग द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बेसिकली बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग जैसे होता है तो जितनी भी एनर्जी कंबाइन हमारे ये दोनों की होती है, मतलब ये जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वॉट एवर दे आर हैविंग एनर्जी व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, सो डेफिनेटली जो हमारा न्यू बॉन्डिंग बन के जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी डेफिनेटली एनर्जी बहुत लेस होती है, तो जिसे हम लोग ऐसे एनर्जी से नीचे दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे बात याद रखो आप स्टूडेंट। तो ये वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें होता है बॉन्डिंग, और जिसमें अब एंटी बॉन्डिंग का पार्ट मतलब क्या है, विच आर नॉट गोइंग टू टेक पार्टिसिपेट इनटू द बॉन्ड। तो ऊपर जाएंगे नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट होती है, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड। बिकॉज आपको पता होता है बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ NB माइनस Na, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पर भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 2 0, तो आंसर तो यहाँ पे कैंसिल होगा, मतलब दे आर गोइंग टू बी कैंसिल। तो यहाँ पे होता है कि नो बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो होता है क्वांटाइज होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दे आर हैविंग द इक्वल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा जो सिस्टम जो हम लोग स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये सिस्टम विल बी द क्वांटाइज। सो दिस इज हाउ नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नाउ टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे that what kind of electronic transition will be taking place, to understand the HOMO and LUMO concept, we are going to take the example. So through the example you should understand very clearly that how things are going to be happen. अब देख लो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप अगर इस मॉलिक्यूल में देखोगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। अब सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा है, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसे मैंने डिनोट किया है एन से। तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एक तो सिग्मा है, पाई है और एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करें। अब पॉसिबिलिटीज क्या होती है, वी आर गोइंग टू सी द इन व्हाट डायग्राम। अब यहाँ पे देखो सिग्मा जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, सो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जनरली ऐसे होता है। तो ये मैंने p ऑर्बिटल लिया है, दे आर गोइंग टू बी मर्ज टुगेदर, वी विल गेट सिग्मा, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कैसे ओवरलैप होता है, तो p ऑर्बिटल जब साइड ओवरलैपिंग करते हैं, सो वी विल गेट ओवर हियर अबाउट पाई बॉन्ड। तो डेफिनेटली इसकी जो एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी जरा हाई होती है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी साइड ओवरलैपिंग। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो मैंने चार्ट बनाया है, एनर्जी चार्ट, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो सबसे जो कम एनर्जी जो होती है किसकी होती है, सिग्मा, देन फॉलोड बाय पाई, देन आएगा आपका नॉन बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने बोला ये यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या है, दोनों कैंसिल किया तो वो कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे है। तो ये तो 3 मेरे फिक्स है। सबसे कम एनर्जी होगी किसकी, सिग्मा की। और यहाँ पर क्यों, बिकॉज साइड ओवरलैपिंग हो रहा है, देन नॉन बॉन्डिंग। अब डेफिनेटली अगर मैंने एंटी बॉन्डिंग किया तो एंटी बॉन्डिंग में सबसे पहले कौन आएगा, पाई स्टार, followed that sigma star. So as you can see in the diagram, you can clearly see out कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर और किसकी एनर्जी कम है। Now what are the possibility? How the electronic transition will be taking place? तो सपोज यहाँ पे मेरा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने फील करी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा हायर एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये यहाँ पर जा सकता है, या फिर ये जंप करके यहाँ पर भी जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, सबसे पहले तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 पॉसिबिलिटी, एक तो n2 पाई स्टार, n2 सिग्मा स्टार, दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी, राइट। अब थर्ड मान लो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, आई एम कंसिडर नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन इनटू द पाई सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं करेगा, बिकॉज हमें देखना है एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जंप करके आइदर यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, मतलब अगेन 2 पॉसिबिलिटी। सो पाई टू पाई स्टार, पाई टू sigma star. In the same way, if I am going to be consider the sigma electron, then they are going to be jump to the sigma to sigma या फिर sigma to pi star, because तो यहाँ पर तो हमारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब यहाँ पे हमें क्या केयरफुली देखना है, दैट दीज आर द सो मेनी पॉसिबिलिटी, बट इन रियलिटी ऑल दिस what transition are not going to be possible. तो यहाँ पे कुछ some of the rules होते हैं, to follow that particular rule we are going to be decided that which electronic transitions are going to be possible, जिसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं selection rule. Now this selection rule will be अगेन डिपेंड अपॉन द 2 टर्मिनोलॉजी, एक होता है स्पिन चेंज के ऊपर डिपेंड करता है और सेकंड है सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री पार्ट मैंने ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ाया था, आई होप सो यू शुड नॉट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर पार्ट, गिरेड एंड द अनगिरेड,
ठीक है, हम लोग ये अभी यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो सिलेक्शन रूल होता क्या है, स्पिन स्टेट डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, तो ये एक्चुअली वैलिड होनी चाहिए कंडीशन, तो ही ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, अब ये स्पिन चेंज स्टेट मतलब क्या है वो देख लो। अगर मान लो ये मेरी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब प्लस हाफ होता है इसकी वैल्यू, तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एक्साइटेड स्टेट में। इफ द स्पिन विल बी इन द डाउनवर्ड, तो एक्साइटेड स्टेट में भी वो डाउनवर्ड ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये प्लस हाफ है तो प्लस हाफ है, माइनस हाफ है तो माइनस हाफ है। तो यही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर गोइंग टू बी अलाउ in the case of electronic transition. This is the first selection rule. But suppose if the plus up, मतलब ये यहाँ पर up है, but excited state में jump करने के बाद if they are going to be changing the spin state, मतलब वो डाउनवर्ड हो रहा है, प्लस हाफ से माइनस हाफ हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो दीज आर द फॉरबिडन एंड दीज आर द स्पिन स्टेट आर गोइंग टू बी अलाउ। तो सबसे पहले रूल हमें ये यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये रूल कौन यहाँ पे कैरिड आउट करता है, तो आप देख लीजिए, ये n टू पाई स्टार हुआ, n टू सिग्मा स्टार हुआ, देन पाई टू पाई स्टार। अब हमें सिलेक्ट करना है कि आउट ऑफ दिस विच एक्चुअली पॉसिबिलिटी विल बी कैरिड आउट। तो यहाँ पे कौन से सिलेक्शन रूल में यहाँ पे वो फिट हो रहे। अब सेकंड जो यहाँ पर पार्ट होता है वो होता है सिमेट्री। तो सिमेट्री तो हम लोग अभी स्टडी करते हैं। Now I can see over here the symmetry based part. Okay, now after understanding the whole spin change state, now symmetry based में हमें यहाँ पे गिरेड और अनगिरेड को कंसीडर करना है। तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा है, जब हम लोग सिमेट्री बेस में गिरेड को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट यूर अनगिरेड टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पर जो होती है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है, दैट पर्टिकुलर सिमेट्री विल बी एब्सेंट ओवर हियर। ओके, सो एज यू कैन सी द when we are going to be consider the s p d f ऑर्बिटल, तो आपको पता है these are the s ऑर्बिटल, जिसमें प्लस साइन है तो बाजू में सब प्लस साइन होते हैं। तो अगर मैंने उसको इक्वली उसको एक्सटेंड किया, सो वी विल गेट द सिमिलर साइन। तो इसमें क्या है, सिमेट्री सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, प्रेजेंट है, तो ये एस आपका होता है जी, मतलब गिरेड हुआ। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैंने पी ऑर्बिटल यहाँ पे कंसीडर किया तो ऐसे लोब्स होते हैं, दीज आर द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे प्लस है माइनस साइन है। इफ आई एम गोइंग टू बी सी द सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो यहाँ पे क्या है, वी आर गेटिंग द अपोजिट साइन। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपका क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे यू हुआ। वैसे सिमिलरली आप अगर यहाँ पे डी ऑर्बिटल देखोगे, एफ ऑर्बिटल देखोगे, तो डी ऑर्बिटल जो होता है गिरेड है, जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, एफ ऑर्बिटल में नहीं होता है। तो अब हम लोग ये सेम टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ योर व्हाट यूर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है दैट विच पॉसिबिलिटी विच स्टेट आर गोइंग टू बी अलाउ और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैंने पाई ऑर्बिटल को यहाँ पे कंसिडर किया, अब पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो बॉन्डिंग में ये सिमिलर है, तो अगर मैंने उसको इक्वली एक्सटेंड किया, इसको इक्वली एक्सटेंड किया, सो वी विल गेट व्हाट हियर द डिसिमिलर चार्जेस। तो यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, मतलब इट इंडिकेट्स व्हाट अनगिरेड। इन द सेम वे अगर मैंने पाई स्टार किया, पाई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। नाउ दिस वन ऑफ द लोब विल बी व्हाट इनवर्ड। तो इन्वर्जन मैंने किया, नाउ आई एम गोइंग टू बी एक्सटेंड ऑन अपोजिट साइड, तो यहाँ पे मुझे सिमिलर चार्जेस मिल रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ वो गिरेड। इन द सेम में अब मैंने बात किया सिग्मा और सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार मतलब अपोजिट चार्जेस, तो प्लस माइनस, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, अनगिरेड, तो इसमें इन्वर्जन होगा, तो दे आर द अपोजिट साइड, तो आपका आई यहाँ पे मिलेगा एंड यू विल गेट योर ग्रेड। तो अब सिमेट्री जब हम लोग यहाँ पे एक बेस जब हम लोग देखते हैं दैट विच ट्रांजिशन विल बी अलाउ और फॉरबिडन, तो यहाँ पे हमें गिरेड और अनगिरेड की ये सिमेट्री देखनी। इफ दे आर बोथ गिरेड, सिमेट्री फॉरबिडन, बोथ अनगिरेड, सिमेट्री फॉरबिडन। इफ दे आर अपोजिट, वन गिरेड एंड वन अनगिरेड, देन दे आर गोइंग टू बी सिमेट्री अलाउ। तो अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अलाउ करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैंने बात की यहाँ पर, ठीक है, किसकी, सिग्मा की, तो सिग्मा आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सिग्मा मेरा यहाँ पे क्या है, गिरेड है। पाई यहाँ पर क्या है, सिमेट्री उसकी अनगिरेड है। देन एन का तो यहाँ पर सवाल होता ही नहीं है। देन पाई स्टार अगेन गिरेड है, सिग्मा स्टार जो है मेरा अनगिरेड। अब यहाँ पे आपको वेरी इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें से मेरे कौन से चार्जेस अलाउ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, तो डेफिनेटली ये होगा ही ट्रांजिशन अलाउ ना। आउट ऑफ द फोर द विच ट्रांजिशन विल बी अलाउ। तो मैंने यहाँ पर अगर देखा पाई टू पाई स्टार, ठीक है, तो ये क्या है, यू एन जी, तो अलाउ है। तो अब मैं बात करती हूँ पाई टू सिग्मा स्टार, तो यहाँ पे देखो ये भी अनगिरेड है, तो डेफिनेटली सिमेट्री फॉरबिडन होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार,
देखो गिरेड अनगिरेड है तो ये पॉसिबल है, बट अगर मैंने सिग्मा टू पाई स्टार बात की तो दोनों की सिमेट्री सेम है तो ये कैंसिल होगा. सो दिस इज हाउ इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओनली द 4 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन their spin chain state and the symmetry base. Only the 1, 2, 3 and the 4. Now these are going to be doesn't allow. So this is how we are going to be decided that by the selection rule that which electronic transition are going to be possible. Okay, so this is how we are going to be decided. Now the next question will be the so many competitive exam they are going to be asking the what is actually their stability energy order. So as you can see from the 200 to the 400 nanometer or the 800 nanometer, if I am going to be consider the same the energy for this 4 1 2 3. Now these are the only 4 transitions are going to be possible. तो सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है वो होती है किसकी, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार की. तो सबसे पहले जो होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो होता है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. फॉलोड दैट जो होता है सेकेंड एन टू सिग्मा स्टार. ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाई. व्हाई आई एम गोइंग टू बी नाउ सिलेक्टिंग, व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टिंग ओवर हियर द पाई टू पाई स्टार. द सिंपल रीजन इज दैट बिकॉज पाई टू पाई स्टार अगेन वी आर गोइंग टू बी कंसिडर द साइड ओवरलैप, मतलब जिसकी वेवलेंथ ये होगी तो वो एनर्जी में कम होगा. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे पहले इसकी एनर्जी. ठीक है, उसके बाद आपका आएगा पाई टू पाई स्टार ओवरलैप और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका एन टू पाई स्टार. सो दीज आर द एक्चुअली राइट एनर्जी ऑर्डर फॉर व्हाट यूर दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. तो ये सवाल भी बहुत टाइम एग्जाम में आया है कॉम्पिटिटिव, जो आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, अगर हम लोग बात करते इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ तो एनर्जी तो जैसे आपको पता होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब जहाँ पे आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है वहाँ पे आपकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो अगर ये मेरी यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर है, इफ इन द एग्जाम क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर द वेवलेंथ तो डेफिनेटली इसके रिवर्स में होगा. तो वेवलेंथ में सिर्फ हमें एरो क्या करने हैं, उल्टे घुमाने. तो सबसे पहले ये आएगा, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ इन टर्म्स ऑफ व्हाट वेवलेंथ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 200 नैनोमीटर, ठीक है, वैक्यूम यूवी, ठीक है, वो कंसिडर करना है. देन 200 टू 800 नैनोमीटर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रॉपरली याद रखनी है. आई होप सो ना यहाँ तक सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रॉपरली क्लियर हो चुके होंगे दैट हाउ द ट्रांजिशंस विल बी एग्जैक्टली टेकिंग प्लेस. ना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग होल दिस कंसेप्ट यूवी विजिबल, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका पूरा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करता है. नेक्स्ट जो यहाँ पे पार्ट आता है स्टूडेंट, दैट पार्ट विल बी योर व्हाट द इफेक्ट ऑफ योर व्हाट पर्टिकुलर जो इफेक्ट्स होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर, वो हम लोग स्टडी करेंगे इन द next class. Okay, so I hope so in this particular part you should understand the complete UV visible spectroscopy and the absorption spectroscopy part. But still if you have any doubt regarding this means theory, so definitely you should ask me. I definitely resolve you all the problems. So once again thank you so much watching this video, and if you really like this video don't forget to subscribe us. And student most important will be your comment, बिकॉज फ्रॉम योर कमेंट आई शुड अंडरस्टैंड कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. सो कमेंट मी इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टैंड, सो आई डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन.